Hello students, today we are starting the third part of Lost Spring from Flamingo. In the first two parts we have studied the story of young boy Sahib Alam. He was a rag picker. He belongs to the family of rag pickers. His family came from Dhaka in the year 1971 and they are living in Simapuri in the periphery of Delhi. Sahib's mother tells that they had green fields and beautiful place where they come from, that is Dhaka, but they did not have food to eat. That's why they have come to Simapuri. Here they do not have any identity, but they have a ration card which provides them food and their name in voter list. Sahib sometimes finds a rupee, sometimes 10 rupees, and he is happy that he gets something from the garbage. And for his parents, the garbage is the mean of livelihood. Their life depends on rag picking. This garbage is their daily bread. This garbage is their roof on their head. At the end of the story, Sahib is working at a tea stall. Now he has canister in place of his bag. He is happy with this tin canister. Of course, that belongs to the someone else at whose tea stall he is working, and he gets 800 rupees and daily meal. But he is happy. Now he will change his life. Let's start the second part of this chapter. That is the story of Mukesh, another boy. He also belongs to a poor family. He says, I want to drive a car. What is Mukesh's story? Let's begin. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं यही बनूंगा. मैंने इससे पूछा कि तुम कुछ जानते हो कार के बारे में. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. That means he is confident. जब कोई किसी की आंखों में आंख डाल करके किसी बात का जवाब देता है, क्लियरली बोलने की कोशिश करता है, it means he has confidence. And that's why he says, I will learn to drive a car, सीख लूँगा मैं. His dream looked like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. वो उसकी आंखों में सपने हैं. हालांकि वो कहाँ रहता है? छोटी सी गलियों में फिरोज़ाबाद में. फिरोज़ाबाद जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोज़ाबाद में हर घर में बैंगल्स बनाई जाती हैं. जैसे सीमापुरी में साहिब आलम की फैमिली रैग पिकिंग है, वहाँ पर सभी का काम रैग पिकिंग है गार्बेज में. यहाँ पर फिरोज़ाबाद में सभी का काम बैंगल मेकिंग है. It is center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की औरतों के लिए यहीं पर सारी बैंगल्स बनाई जाती है. यहाँ बैंगल मेकिंग हर घर में किया जाता है. और जो बैंगल मेकिंग के लिए काम करते हैं उन लोगों को, गरीब लोगों को ग्लास की ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करना होता है. बहुत गर्मी में काम करना होता है. और ये जनरेशन कई पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं. फर्नेस के पास काम करते हैं, ग्लास वेल्डिंग करते रहते हैं, बैंगल्स बनाते हैं. सुंदर सुंदर वेल्डिंग्स करके बैंगल्स वगैरह बनाई जाती हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with its high temperature, in dingy cells without air and light. That the law enforced, if enforced, could get him all those 20,000 children out of the hot furnace when they
slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. मुकेश की फैमिली उनमें से एक है जो बैंगल बनाती हैं। उन्हें किसी को भी ये नहीं पता है कि छोटे बच्चों को इस तरह से काम करना, स्पेशली ग्लास फर्नेस में काम करना, हाई टेम्परेचर में काम करना, छोटे छोटे से फैक्ट्री, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं होती, घरों में छोटी छोटी सी सेल्स बना करके, जैसे हम बोलते हैं कि कोंदवाड़े या वो छोटा सा घर है, उनमें डिंगी सेल्स में रहते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, ना वहाँ पर प्रॉपर एयर है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। ऐसी मुसीबतों में 20,000 बच्चे काम करते हैं। हालांकि सरकार ने बोल रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि बच्चों से किसी भी फैक्ट्री में किसी भी तरह से काम न लिया जाए। चाइल्ड लेबर पूरी तरह से इंडिया में इलीगल है, बट इन बच्चों को काम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये 20,000 बच्चे एक साथ काम से बाहर हो जाएंगे यदि गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करा दिया तो। मुकेश आई बिम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब यहाँ पर ऑथर मुकेश के घर जा रहे हैं। मुकेश को बड़ी खुशी हो रही है कि कोई गेस्ट उनके साथ है, कोई इसकी खैर खबर लेने आया है, उसका घर देखने के लिए आया है। मुकेश राइटर को घर ले जा रहा है। मुकेश आई बिम as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain halls with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in the primal state. जो मुकेश का घर है, बहुत छोटे से, एक हम कह सकते हैं एक झोपड़पट्टी ही कह सकते हैं, ऐसी छोटी सी जगह पर उसका घर है, जहाँ बहुत सारे घर लोग एक साथ रह रहे हैं। रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, ना वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, ना कोई गार्बेज बाहर निकलने की फैसिलिटी है। सभी घर पास पास चिपके हुए हैं और जानवर भी साथ में रह रहे हैं, इंसान भी वहीं पर रह रहे हैं। तो ये को एग्जिस्टिंग वाला जो मैटर है, को एग्जिस्टिंग है, इंसान जानवर दोनों एक साथ रह रहे हैं। मुकेश, उसे रहने की आदत है, बड़े खुशी खुशी राइटर को अपने घर ले जा रहा है और रास्ते में देख रही है कि क्या क्या मुसीबतें हैं, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। He stops at the door of one such houses, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. मुकेश दरवाजा नॉक करता है और पैर से धक्का दे करके वो जो स्टील डोर है, आयरन डोर है, उसको खोल देता है। We enter a half-built shack. यहाँ शेक मीन्स एक जो पर्दे जैसे लगा रखे छोटा सा मकान, छोटा सा घर है, उसमें उन्होंने एंटर किया। In one part of it, thatched with a dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. Spinach leaves, पालक की भाजी बन रही है। एक छोटे से पार्ट में, इसी घर में छोटे से पार्ट में, हिस्से में स्टोव चल रहा है। स्टोव पर पालक की सब्जी वगैरह बन रही है और बनाने वाली कौन है? मुकेश की भाभी। On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. और वहाँ पर जो एल्यूमिनियम के बर्तन में और भी बहुत सारी सब्जियाँ कटी हुई रखी हुई हैं और एक यंग वुमन सब्जी बना रही है, पूरी फैमिली के लिए वो खाना बना रही है, शाम का खाना मील बना रही है, तैयार कर रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। गेस्ट घर में आता है, वो स्माइल कर देती है, देखती, मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। शी हैज़ बिगन टू command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. जो मुकेश की भाभी है, बड़े भाई की वाइफ, वो कोई उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वो रिस्पेक्ट मिला है जो घर में बहू को मिलता है। बहू हो गई है, बन गई है और उसके पास उसे 3 लोगों की केयर करनी है। मुकेश के बड़े भाई, मुकेश और इनके फादर, इन तीनों की देखभाल वही करती है, तीनों के लिए खाना वही बनाती है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her well closer to her face. जब मुकेश के फादर ओल्ड मैन घर में एंटर करता है
तो जैसा इंडियन बहू का कायदा होता है, वो अपने सिर पर पल्लू ले लेती है, दीवार के पीछे छिप जाती है और इस तरह से वो अपने ससुर को एक रिस्पेक्ट शो कर रही है। अब ये रिस्पेक्ट है, ये फैमिली कल्चर है, डिपेंड नहीं करता है कि अमीर लोगों में ही होता है या गरीब के घर में नहीं होता है। ये कल्चर है, इंडियन ट्रेंड, इंडियन कल्चर, ये अमीर गरीब को देख करके नहीं होता है, ये ट्रेडिशन है, फॉलो करते हैं। तो चाहे उस बुज़ुर्ग ने बहुत कुछ लाइफ में नहीं कमाया है, बहुत कुछ उसको नहीं दिया है, फिर भी उसे वो रिस्पेक्ट, ससुर होने का रिस्पेक्ट, घर में एल्डेस्ट होने का रिस्पेक्ट पूरा मिला। और उसकी मुकेश की भाभी ने अपने सिर पर पल्ला लिया, वेल क्लोजर टू हर फेस, एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जब घर के मेल एल्डर घर में आते हैं तो जो यंग वुमन होती हैं, बहू होती हैं, वो अपना सिर का पल्लू ले लेती हैं। ये एक कायदा है, ट्रेडिशन है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his two sons to school। और जो मुकेश के फादर हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत मेहनत की, हार्ड लेबर किया, और पहले वो एक टेलर थे, बाद में बैंगल मेकर बन गए। वो अपने दोनों बच्चों को, मुकेश और उसके बड़े भाई को, स्कूल वगैरह नहीं भेज पाए, अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। वो जो कुछ भी कर सकते थे, वो सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि इन्हें बैंगल बनाने की आर्ट को सिखा सकें। It is his karma, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। ये हमारा कर्म है, हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत है, ये मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा। उनके हस्बैंड भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए थे, सिर्फ ग्लास बेंगल पे पॉलिश करते करते ख़त्म हो गए। इन्होंने अपनी मुसीबतों को, अपनी गरीबी को अपना कर्म मान लिया, अपना कर्म मान लिया, डेस्टिनी मान लिया, किस्मत मान लिया, उसे स्वीकार कर लिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमें ऐसे ही जीना है, ऐसे ही ख़त्म हो जाना है। कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken? She implies, बोले भगवान ने जो भी कुछ बना रखा है, जो लिनेज कर रखा है, उसे हम तोड़ तो नहीं सकते। हमारी लाइफ में जो है हमें भुगतना ही है। Born the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other houses, every other yard, every street in फिरोजाबाद। क्योंकि वो वही समझती हैं कि हमने बैंगल मेकर की, हमारी एक कास्ट है, बोर्न द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। अब आप सोचिए कि काम करने से कास्ट बन गई है, कि हमारी सबकी कास्ट ही है, कि हमारी बैंगल मेकिंग कास्ट है। वी नो दैट दिस इज़ नॉट द कास्ट, बट उन्होंने स्वीकार कर लिया हमारी जन्म इस फैमिली में हुआ है, इस कास्ट में हुआ है, तो हमें बैंगल ही मेकिंग करनी है। हमारे घर में, यार्ड में, सभी जगह, पूरे फिरोज़ाबाद में हर जगह सिर्फ बैंगल ही नज़र आती है। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the windows, lie in a mounds in the unkempt yard, are piled up on 4-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty towns। पूरे शहर में बैंगल ही बैंगल नज़र आती हैं, रंग बिरंगी, जो हमारे रेनबो के 7 कलर्स हैं, उन्हीं 7 कलर्स की बहुत रंग बिरंगी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बैंगल्स पूरे फिरोज़ाबाद में नज़र आती। जहाँ नज़र जाए, घरों में, हैंड कार्ट पर, सभी जगह व्हील कार्ट, हैंड कार्ट पर सभी बैंगल्स नज़र आती हैं। सभी लोग इसमें एंगेज्ड हैं। एंड इन डार्क hand pans next to lines of flame flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles। वहाँ बहुत सारे बच्चे इधर उधर जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठे बैठे वे भी बैंगल्स बना रहे हैं, बैंगल्स को कलर दे रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। ये बच्चे काम करते करते, अंधेरे में काम करते करते, इनकी आँखें एडजस्ट हो गई हैं, अंधेरे में काम करने के लिए एडजस्ट हो गई हैं। इन्हें बाहर की रोशनी में अब पसंद नहीं आता है, ये अंधेरे में ही काम करने के लायक हो गए, अपनी आँखों की रोशनी खो चुके हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। बड़े होने के पहले ही ये अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं।
Right, my dear? So we stop here. We'll continue in the next slide. Have a good day.